لی ہے، کتب ان کے در سے، ابدال ان کے در سے، فقیر درویش بزرگ ان کی تعلیمات اور ان کے در سے پائے ہیں، تو ان کو موت کیسے ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہتے ہیں تمہیں شعور نہیں، جو ہماری راہوں میں اپنی زندگی دیتے ہیں وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں شعور نہیں، اور واقعی ہمیں شعور نہیں۔ تو یاد رکھیے جہاں شعور نہ ہو وہاں ماننے میں خیر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں۔ آپ آج کے بعد آپ کہیں گے ہم نے انگریز کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے موبائل سے زیرو ہٹا کے کسی کا نمبر ملانا ہے، زیرو نہیں لگانی۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر پیکج سے سٹار اور ہیش نہیں لگانا، ہم نے انگریز کی مخالفت کرنی ہے، اور سٹار ہیش کے بغیر ہمیں پیکج بھی لگ جائے گا۔ تو یہاں تو اپنی عقل استعمال کرتے نہیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے حبیب کی زندگی اور تعلیمات ہیں وہاں نظام اپنی مرضی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہیں، ان کی روحیں عرشوں میں ہیں، ان کے جسموں کے اوپر مٹی حرام ہے نہیں، وہ زندہ ہے۔ اتحیات کا فلسفہ سارا واقعہ کربلا ہے۔ عجیب بات بتاؤں، اتحیات کی تعلیم سارا واقعہ کربلا ہے، اتحیات کی زندگی سارا واقعہ کربلا ہے۔ اور ایک پیغام ہے، جب جائیں تو ہدیہ لے کے جائیں۔ آپ بھی میرے پاس ہدیے کے بغیر نہ آیا کریں، آپ بھی میرے پاس ہدیے کے بغیر نہ آیا کریں، خالی ہاتھ نہ آیا کریں۔ اور خالی ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بھی آج آپ کو میں نے بتا دیا، مال کا ہدیہ ہوتا ہے تو اعمال کا بھی ہوتا ہے، اعمال، اور اعمال میں اعمال بھی ہے، اس دن اعمال کا بھی ہدیہ۔ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کون ہے؟ جب ان کی بارگاہ میں گئے تو اتحیات کا ہدیہ لائے، اور میرے رب نے بھی ہدیہ عطا فرمایا صرف حبیب کو، اور کملی والے کے ماننے والے کو بھی قیامت تک ہر نماز کی ہر نفل میں، ہر نماز کی ہر تہجد میں، ہر اوابین میں، ہر اشراق میں، ہر چاشت میں، ہر فرض میں، ہر وتر میں، ہر سنت میں، ہر سنت غیر موقدہ میں، ہر سنت موقدہ میں، ہر صلاۃ الحاجت میں، ہر صلاۃ التسبیح میں، ہر صلاۃ کن فیکون میں، زندگی کے ہر اتحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پیغام ملا ہے، اور اس میں آپ سارے شامل ہیں، آپ سارے شامل ہیں۔ اگر زندگی وہ ہے جس کے اندر فکر حسینی ہے، اور فکر حسینی میں زندگی کیا ہے کہ مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ فکر حسینی ہے۔ وہاں شام کی بازار میں کچھ بینر بک رہے تھے، میں نے دیکھا مستورات ہیں، ان کے آگے حجاب ہے، میں نے خرید کے لے آیا۔ بک رہے تھے، واقعہ کربلا کو انہوں نے منظر میں دکھانے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ بک رہے تھے، میں لے آیا، اور میں نے کہا یہ سچ ہے کہ مردوں نے حق کا اور صبر کا، اور عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو اور اتنا بڑا نظام ہو، اور اتنے بڑے واقعہ اور نظام کے اندر، اتنے بڑے واقعہ اور نظام میں آپ محسوس کریں اتنا بڑا نظام ہو، اور جس میں جانیں جا رہی ہیں، جس میں بچے شہید ہو رہے ہیں، جس میں بچوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، اس نے واقعے میں عورتیں حیا اور پردہ چھوڑ دیں۔ ایک بندہ مر جاتا ہے، عورتوں کو حیا پردے کا پتہ نہیں ہوتا، بال کھلے ہوئے، جسم کا ڈھکنے کا خبر نہیں ہے
कि हमारा बेटा बाप भाई, उस वक्त पता नहीं होता। हाँ, ये है फिक्र हुसैनी। उसी वक्त पता चलता है कौन हुसैनी है, उसी वक्त पता चलता है। अमवात में जब अजीज तरीन हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, उस वक्त पता चलता है कौन फिक्र हुसैनी की चादर ओढ़ के चलने वाला है और कौन फिक्र हुसैनी की चादर को तार तार करने वाला है और फाड़ने वाला है। अपनी शादियों में, अपनी गमियों में, अपनी खुशियों में वो हुसैनी निजाम चलता है। और जो हुसैनी नहीं थे उन्होंने तो जश्न मनाया हुआ था कि आज हम फातेह बन गए हैं, हमें इक़्तिदार मिल गया है, हमें हुकूमत मिल गई है, हमें गलबा मिल गया है। जश्न मनाने वाले यजीदी थे। और हक और सबर, हया और पर्दे का साथ देने वाले कौन थे? हुसैनी थे। वाह वाह, बस फर्क साफ साफ है। हम अपनी शादियों में जश्न, हमारी फतेह में जश्न, गज़वा बदर में जश्न मनाने के लिए पूरा सामान था। एक तरफ 313 थे जिनके पास तलवारें घोड़े कुछ नहीं था, लकड़ियां और छड़ियां थी, चंद के पास घोड़े और तलवारें। लेकिन जश्न मनाने वालों को रब ने दिखाया कि नाकाम किया, जलील किया। और कमली वाले की गुलामी में साथ देने वाले बदरी साहबा आज भी हैं, जिनके नाम को पढ़ के वसीले से जो मांगे अल्लाह की कसम मिलता है, आज भी मिलता है। आप सारे हुसैनी बैठे हैं जो एक फिक्र, एक गम, एक जज्बे को लेके चल रहे हैं। वाकया करबला एक दफा हुआ था, फिर नहीं होगा, लेकिन एक जिंदगी दे गया था, एक निशानियां दे गया था, एक चलने का अंदाज दे गया है, एक सोच बना गया है। वाकया करबला एक सोच बना गया है, एक सोच बना गया है। उन हस्तियों के लिए रोना किसने कहा है हराम है? उन हस्तियों के लिए आंसू बहाना किसने कहा है गुनाह है? किसने कहा? लेकिन एक सोच, एक जज्बा, एक जज्बा दे गया है कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। जश्न मनाने वाले वो यजीदी थे और हक और सबर, हया और पर्दे का साथ देने वाले हुसैनी थे। हक फिर जब हक की बात आई है, फिर अल्लाह उसके हबीब की बात आई है, फिर कुरान और कुरानी तालीमात की बात आई है, फिर कमली वाले के नाम के लिए सर झुकाने की बात आई है, फिर अल्लाह उसके रसूल के लिए घराना कुर्बान करने की बात आई है। फिर घराना कुर्बान कर दिया पर हक को नहीं छोड़ा। ये हक है, ये हक है। अम्मा ने ना कपड़े सी के दे दिए, कपड़ों में पैसे सी के दे दिए। रास्ते में चोर आते हैं। गांव से एक बच्चा चला, बगदाद में पढ़ने आ रहा, रास्ते में चोरों ने लिया और सबको लूट लिया और कहा है किसी के पास कुछ? उसने कहा नहीं है। बाबे ने कहा, बच्चे ने, अम्मा ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। कहा मेरे पास है। क्या है तेरे पास? हमने तेरी तलाशी ली। कहा ये कपड़ों के अंदर अम्मा ने सोने चांदी के सिक्के थोड़े से सी दिए थे ताकि पता ना चले ये हैं। उन्होंने कपड़े से सिक्के निकाल लिए, शर्फियां निकाल ली। सोचने लगे ये कौन बच्चा है जिसने इस हाल में हक का साथ दिया। ये हक है, हक का साथ दिया। इस हाल में हक का सादिक कौन है? उसने कहा कौन है? कहा मैं गांव का हूं। अम्मा ने कहा बेटा बगदाद में जा पढ़ने के लिए। कहा बेटा तेरी बात ने हमारे दिल को तार तार कर दिया है, तो लगता है हुसैनी है। कहा हाँ मैं हुसैनी और हसनी हूं, अम्मा की तरफ से और अब्बा की तरफ से। और तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है और लोग मुझे पीराने पीर कहेंगे, मुझे गौसल आजम कहेंगे, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेंगे। कहा तेरी बात ने हमारे सिह दिल को तोड़ दिया है। आज की बात भी हम हक का साथ देंगे। लगता है तो हुसैनी है, तो हसनी है। हाँ हाँ मैं हुसैनी हूं, बस
हुसैनी ने हमें तोड़ दिया और तमाम डाकुओं ने तौबा कर ली और जिंदगी फिर ऐसी गुजारी, हर डाकू वक्त का वली बना, हक का साथ दिया। अब तो सारे हुसैनी बैठे हैं, आप तो सारे हुसैनी बैठे हैं जिन्होंने हक का साथ दिया। और हक का साथ देने वालों को कुरान में कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। मेरे हबीब जाते हुए जाके ना उन लोगों को सलाम कहना जो शादियों और गमों में, जो जिंदगी की कामयाबियों में जश्न नहीं मनाते, जो सजदे में गिर जाते हैं। फतह मक्का में मेरे आका के सर मुबारक पे स्याह पगड़ी बंधी हुई थी और हुजूर ने आके जश्न नहीं मनाया, हुजूर ने आके सजदे किए हैं। फतह मक्का में मेरे आका ने आके सजदे किए, जश्न नहीं मनाया। जश्न तो यजीदी मनाते हैं, हुसैनी जश्न नहीं मनाते। हुसैनियों की रीत रिवायत पहले दिन से आखिर तक अल्लाह के सामने झुक जाना है, झुक जाना है, झुक जाना है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी लम्हात थे, हम दोनों भाई खड़े थे, तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी लम्हात थे। मैंने वालिद के होंठ हिलते देखे, कान लगाया, समझ ना आई। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा कान लगाए, वालिद साहब कुछ फरमा रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, कुछ चीज मांग रहे हैं। मैंने, उन्होंने कहा समझ नहीं आती। मैंने फिर कान लगाए, नहीं वालदा की बात कर रहा हूं, मैं भूल गया हूं, वालदा की बात कर रहा हूं। और मेरे वालिद ने मुझे वालिद के बारे में बताया था, ये मैं वालदा की बात कर रहा हूं, मैं भूल गया हूं। तो कहते मैंने कान लगाए, कान लगाए तो कहा मैंने मुंह से सिर्फ कलमे के अल्फाज मोहम्मद सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भाई ने बताया, मेरी वालदा के आखिरी लम्हात थे, उनका सर मेरे हाथों में था और मेरे हाथों में उनके जान निकली, रूह निकली। मैंने उनके लबों को हिलता कान लगाए, मैंने उनको कलमे की तरतीब सुनी। एक बात बताऊं, कितनी खुशी की बात है, आखिरी लम्हा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का नाम लेते गुजरा। लेकिन क्या ख्याल है उन हस्तियों ने जिनके दर से कलमा मिला था। कलमा किस दर से मिला? मेरे हबीब, और ये मेरे हबीब के दो बेटे थे, मेरे हबीब के दो बेटे, मेरे दो बेटे हैं, बार बार रिवायात में आता है, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। उनके कलमे की कैफियतें क्या होंगी, उनके आखिरी लम्हा क्या, जिनकी जुबान पे, अतहर पे मेरे हुजूर ने जुबान फक्र की वजह से चूसी। और किताबों में आता है कि उन होंठों पर छड़ियां मार रहे हैं। मेरे अपनों के साथ कुछ हो कि मेरे एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरे भाई को मारा, मारने के बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया उसकी लाश पे, फिर लाश के ट्रैक्टर के बाद उसकी लाश को आग लगा दी पेट्रोल डाल के। वो एक एक लम्हे को रो रो के बयान करता था। गम के साथ मुझे आज तक उसका गम नहीं भूला। मेरे आका कमली वाले के बेटे हुसैन के साथ और उनके घराने के एक एक चांद के साथ, एक एक सितारे के साथ, एक एक मोती के साथ, एक एक लाल के साथ, एक एक जवाहर के साथ, एक एक याकूत के साथ